सारे भैन भरावां नूं हालेलुया 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 हालेलुया। स्वर्गी पिता खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਇਆਵਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰੂਹ ਜਿਸਮ ਜਾਨ ਤੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰ ਪਾਈਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀ, ਕਬੂਲ ਕਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਧਰਮੀ ਜਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ, ਗੁਨਾਹ, ਪਾਪ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਕਰਨ ਨਾਲ, ਵੇਖਣ ਨਾਲ, ਸੋਚਣ ਨਾਲ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਸਥਿਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਸਾ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਦਇਆਵਾਨ ਪਿਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਈਏ। ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਔਰ ਜਲਾਲੀ ਸਵਰਗੀ ਨਾਮ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ सबको जय मसीह की। जय मसीह दी बेटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। हालेलुया। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफ करो, उसकी तारीफ करो, हाँ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। सब उसकी तारीफ करो, सब उसकी तारीफ करो, हाँ उसके हुजूर में आओ। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। नाम मुक़द्दस पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। नाम मुक़द्दस पाक यहोवा है, उसको जो चाहता है शादमान होता है। दीदार उसे जब रूह का होता है, खुशियों से भरता है, कुव्वत वो देता है उसके काम निराले। है उसके काम निराले, है उसका प्यार अनोखा। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका। शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका।
सब उसकी तारीफें गाओ, मीटिंग करने सब उसकी तारीफें गाओ, हाँ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, वो ही खुदा है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है, वो ही खुदा है, खुदा वो हमारा है, हाथों से अपने उसने सब कुछ बनाया है, अपने इरादों को वो याद रखता है, और अपने वादों को पूरा वो करता है, उसने जो भी फरमाया हो, उसने जो भी फरमाया वो करके दिखला, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, हाँ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, मोज़ेज़े दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, मोज़ेज़े दिखाए अपने लोगों को बचाया, तोड़ के जंजीरें उसने छुड़ाया, धूप के माँ पे बादल को फैलाया, आज के अंधेरों में रोशनी को चमकाए, उसने चट्टान को चीरा, उसने चट्टान को चीरा, फूटा पानी का झरना, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, सब उसकी तारीफें गाओ, सब उसकी तारीफें गाओ, हाँ उसके हजूर में आओ, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, शुक्र करो रब का, वो जो मालिक है सबका, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया आमीन। बेटा गॉड ब्लेस यू, प्रभु तेनू आशीषित करे, बहुत सारी ब्लेसिंग करे और तेनू ਵਧਾਏ ਆਪਣੇ ਹਮਦੋ ਸਨਾ ਸਤੁਤੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ। आया बेटे। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੀਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ, ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। आप पवित्र आत्मा जल्दी जल्दी आप पवित्र आत्मा जल्दी 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 रूहे पाक उतर आप पवित्र आत्मा जल्दी 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 रूहे पाक उतर आप पवित्र आत्मा जल्दी जल्दी रोगी रोगी होके दर ते आया, चंगा मैनू कर खुदाया,
ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋੜ ਹਟਾਏ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋੜ ਹਟਾਏ। ਘੋੜੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕੋੜ ਹਟਾਏ। ਪਾਪੀ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਖੁਦਾਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਖੁਦਾਇਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਖੁਦਾਇਆ ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਰੋਗੀ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ। ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਖੁਦਾਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਉਤਰਿਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਆਪ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। शक्तिमान परम पिता परमेश्वर जी, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਈ ਭੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਮੰਗਣੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਜਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਵਧਾਓ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਗੀਤ ਗਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਣ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਲਾਲੀ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ तेरी दया महान है, सर्व शक्तिमान खुदा तू महान है प्रभु जी। दया करना, कृपा करना, रहमत करना, मेहर करना हर एक बच्चे ते मेरे प्रभु जी। मेरे खुदावन खुदा जो अज भराई वचन दे प्रभु जी,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਛੂਣਾ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ, ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਪਵਿੱਤਰ ਖੁਦਾ ਹੋ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਆਮੈਨ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਰੂਥ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਆਪਾਂ ਰਿਬਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲਾਮ ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਸਟਰ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਬਕਾ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਜੈ ਮਸੀਹ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सब्र। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा,
तेरे नजदीक है, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। आमीन आमीन। प्रभु आशीष और बरकत दे इस गीत के लिए। ब्लेस करें। हम सिस्टर शकुंतला के साथ प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम भाई केश के साथ पवित्र कलाम में जाएंगे। सिस्टर शकुंतला प्रार्थना कर सकते हैं। God bless you, brother. Praise God the bless. Lord to all brothers and sisters. God bless you. तारीफ 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 तारीफ, हालेलुया 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 हालेलुया। जिंदे प्रभु यीशु मसीहा, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਹਿਮ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਬੜਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੀਜਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਗਲਤੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਈਮਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਤਗੜਾਈ ਬਖਸ਼ੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ, ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ, ਰਹਿਣ ਲਈ ਛੱਤ ਬਖਸ਼ੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ,
ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਉਸਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ, ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਆਪਣਾ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਾ ਉਂਡੇਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੀਤ ਭਜਨ ਗਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਗੀਤ ਗਾਏ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਦੁਆਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਮੱਸੇ ਨਾਲ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਜੋ ਵਚਨ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਵਚਨ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹੋਣ ਦੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਖੋਲ ਦੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੇਸਮਝੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਓ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਵੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਐਲਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਲਓ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਦਇਆ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ प्रभु यीशु मसीह के नाम च सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे सिस्टर शकुंतला। और अब हम पवित्र कलाम में जाएंगे भाई राकेश के साथ। भाई टेक ओवर टू भाई राकेश। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे और शुक्रगुजारी के साथ आज की शाम की बंदगी की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं और हर एक चीज के लिए धन्यवाद करते हैं। हर आशीषों और बरकतों के लिए प्रभु का शुक्रगुजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और महान परमेश्वर का हर समय शुक्रगुजारी और धन्यवाद करता हूँ।
वही महान परमेश्वर है, महिमा के योग्य खुदा है। मैं उसके नाम की स्तुति करता हूँ और उसके नाम की हमेशा हमदो सना और तारीफ करता हूँ। आमीन आमीन। आइए हम पवित्र बाइबल में चलेंगे। भजन संहिता 145 और उसके 2 वचन में चलेंगे। और वचन यूं कहता है, प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, आपके पाक नाम में प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु जी, इस पढ़े हुए कलाम के लिए, वचन के लिए आशीषें और बरकतें को मांगता हूँ प्रभु जी। होने दे खुदा, ये पाक कलाम खुदावंद आपकी पाक रूह में पढ़ा जाए प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारे सहायक की तरह प्रभु जी, डिवाइन हेल्पर की तरह पवित्र आत्मा की जरिए हमारी सहायता करें प्रभु जी। ये छोटी प्रार्थना के साथ मैं आता हूँ आपके पाक नाम में, प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन। भजन संहिता 145 में प्रभु का वचन कहता है कि मैं प्रतिदिन तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। जो भी विश्वासी है वो प्रतिदिन परमेश्वर का थैंक्स, धन्यवाद करता है, उसकी स्तुति सर्वदा करता रहता है। जो प्रभु के नाम के ऊपर विश्वास करता है वो सिर्फ एक दिन का मसीह नहीं होता, सिर्फ संडे वाला मसीह नहीं रहेगा। वो जो सच में अपना जीवन प्रभु को दे चुका है, वो हर समय, चाहे वो जहां भी हो, ड्यूटी पे हो, अपने व्यापार पे हो, कामकाज पे हो, वो सर्वदा परमेश्वर का प्रतिदिन धन्यवाद करेगा, हमेशा उसकी स्तुति करेगा हमेशा सर्वदा के लिए खुदा के नाम को जलाल देगा। और प्रभु चाहे तो हर एक विश्वासी प्रभु का धन्यवाद करे, शुक्रगुजारी करे। कलाम भी कहता है कि जब भी कोई कार्य करे, हर समय जो भी कार्य करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में करे। और हर समय चलते फिरते हुए, कामकाज में, खाते पीते सोते समय हमेशा प्रभु को याद करे। और प्रभु का दास दाऊद कहता है कि मैं रात को जाग जाग कर परमेश्वर की याद में रहता हूँ। जब मैं खेतों में होता हूँ, काम में होता हूँ, तब भी मैं परमेश्वर को याद करता हूँ, परमेश्वर के भजन गीत गाता हूँ, सर्वदा परमेश्वर की स्तुति करता हूँ। विश्वासी जन हमेशा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम चलेंगे फिलिप्पियों 4 अध्याय और उसकी 6 आयत में। खुदा का कलाम कहता है, किसी बात की चिंता मत करो। ये कलाम परमेश्वर का हमें कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। प्रभु का कलाम कहता है कि पहले तो आप चिंता छोड़ दीजिए। अगर आपका अगर आपका विश्वास खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, तो आप सबसे पहले अपनी चिंता को छोड़ें, अपनी बर्डन को छोड़ें। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं अब तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। अगर कोई कहता है कि मैं अपना बोझ खुद उठा लूंगा, तो वो अपना बोझ नहीं उठा सकता। हमें अपना सारा बर्डन, हमें अपना सारा बोझ, सारी चिंताएं प्रभु के हवाले करनी पड़े। उसके कदमों में हमें सारी चिंताएं रखनी पड़े। खुदा का कलाम कहता है, चिंता ना करो, किसी बात की चिंता ना करो, सर्वदा धन्यवाद करें निवेदन के साथ। जब भी परमेश्वर के पास आप जाएं, सबसे पहले अपनी जो चिंता है उसको पीछे हटा दीजिए,
उसे भूल जाइए अपनी चिंता को, किसी चीज की चिंता ना करें आप। क्या करें आप? निवेदन करें परमेश्वर के सम्मुख। जब आप जाएं, सबसे पहले विनती करें, निवेदन करें। और क्या करें? जो सबसे जरूरी चीज है एक विश्वासी के लिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है प्रेयर, प्रार्थना। आप प्रार्थना करें परमेश्वर। जब भी आपको समय मिले, सारे काम पीछे करते हुए आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, प्रेजेंस में जाएं उसकी। और क्या करें? आप प्रार्थना करें। आपको सुबह टाइम मिलता है, सुबह के समय प्रार्थना करें। आपको दोपहर को समय मिलता है, आपको दोपहर को प्रार्थना करें। रात को समय मिलता है, रात को प्रार्थना करें। जब भी आपको समय मिले, सबसे पहले सभी कामों को, सभी चिंताओं को, सभी बर्डन को पीछे रखकर आप सबसे पहले प्रार्थना करें। प्रार्थना करें और विनती के द्वारा साथ में क्या करें? निवेदन करें, प्रार्थना करें, विनती करें और उसके साथ धन्यवाद करें परमेश्वर का। हर एक चीज के लिए शुक्रिया करें आप, थैंक्स करें प्रभु का। आप जो सांस ले रहे हैं, उन सांसों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप जिन आंखों से देख रहे हैं, उन आंखों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप शुक्रगुजारी करें। आप सभी आशीषों के लिए, सभी ब्लेसिंगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। और जो भी परमेश्वर ने आपको प्रोवाइड किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर ने आपको अच्छा किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। छोटी से छोटी चीज के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अगर आज हम जिंदा हैं, तो ये परमेश्वर की बदौलत है। हम देख सकते हैं अपने आस पड़ोस में बहुत सारे लोग जमीन से उठा लिए गए हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, ये उनकी ब्लेसिंग है परमेश्वर की हमारे जीवन में, कि आज हम जमीन पे हैं। और पवित्र बाइबल कहती है कि मिट्टी उसका धन्यवाद नहीं कर सकती, केवल जो जीवते हैं उसका धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आज हम जिंदा हैं, तो हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु जी, मैं शुक्रगुजार करता हूँ आपका, मैं शुक्रगुजार करती हूँ प्रभु, आपका बच्चा, आपकी बच्ची बन के प्रभु जी, कि खुदाबंद मैं आज जिंदा हूँ प्रभु जी। मैं सांस ले रही हूँ प्रभु, सांस ले रहा हूँ खुदा, ये आपकी बदौलत है प्रभु जी। मैं शुक्रगुजार करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाता है कि आप क्या करें? सबसे पहले प्रार्थना करें, शुक्रगुजारी करें, धन्यवाद करें। देखते हैं यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, मूसा तू हाथ उठा और प्रार्थना कर, और प्रार्थना करता रहे। हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में मूसा, जो परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का चुना हुआ दास था। जब इजरायली लोग युद्ध में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो प्रभु यहोवा मूसा से कहता है कि तू क्या कर, तू प्रार्थना कर। जितने जन लड़ाई पे गए हैं, तो उन सभी के लिए प्रार्थना कर। जब तू हाथ उठा के प्रार्थना करेगा, तो मैं तेरी प्रार्थना की ओर देखूंगा, तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। जब तक तू मूसा हाथ उठा के प्रार्थना करेगा, इजरायली लोग जीतेंगे। तो मूसा क्या करता है? मूसा परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है, यहोवा की आज्ञा का पालन करता है। वो क्या करता है? मूसा अपने हाथों को उठाता है और प्रार्थना में लग जाता है। उसने उसने दूसरी कोई भी बात नहीं सुनी, उसने सिर्फ एक ही बात सुनी कि मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे कहता है कि मूसा अपने हाथ उठा और प्रार्थना कर। मूसा ने अपने दोनों हाथों को उठाया और प्रार्थना में लवलीन हो गया। हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं कि प्रार्थना में जब मूसा लगा रहता है, तो जो लड़ाई में इजरायली लोग जाते हैं, वो जीतते हैं, जीतते ही जाते हैं। मूसा जब निरंतर प्रार्थना में रहता है हाथ उठाए हुए, तो वो कुछ देर बाद उसके हाथ थक जाते हैं, वो अपने हाथों को नीचे करता है। तो खबर क्या आती है? लोग बताते हैं कि मूसा, इस जो इजरायली लड़ाई पे गए हैं, वो सभी हारने लगे हैं। मूसा कहता है, वो क्यों हारने लगे हैं? मूसा फिर
फिर से दोबारा प्रार्थना में लग जाता है, अपने हाथों को उठाता है, फिर कंटिन्यू लगातार निरंतर प्रार्थना में लग जाता है। फिर खबर आती है कि मूसा, जो इजरायली लोग लड़ाई में गए हैं वो जीतने लगे हैं, वो युद्ध में जितने लोग गए हैं वो सभी लड़ाई में जीत रहे हैं। मूसा को एक बात समझ में आती है कि प्रार्थना में सामर्थ है, प्रार्थना में बल है। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ प्रार्थना करनी, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना से खुश होता है। मूसा लगातार हाथों को उठाए हुए प्रार्थना करता है और इजरायली लोग लड़ाई में जीतते हैं, युद्ध में जीतते हैं। जब उसके हाथ फिर से थक जाते हैं तो वो इंसान था, वो क्या करता है, अपने भाइयों को अपने पास बुलाता है, हारून को और साथियों को, और सिर्फ एक ही कमांड करता है कि मेरे भाइयों, मेरे हाथों को पकड़ो और ऊपर उठा के रखो। प्रार्थना में परमेश्वर सिर्फ हमारी प्रार्थना की ओर ध्यान लगाए बैठा है। हालेलुया। वो निरंतर प्रार्थना में रहता है और खुदा भी हमें यही सिखाता है, जब भी आपको समय मिले आप फिजूल की बातें मत कीजिए, आप इधर उधर की बातें मत कीजिए, आप कलाम की बातें कीजिए। जब आपके पास समय है, छोड़िए सभी काम को, सबसे जरूरी काम है प्रार्थना। दुआ में चले जाइए, गुप्त में परमेश्वर से बातें कीजिए, द्वार बंद कीजिए, प्रार्थना में जाएं। सबसे जरूरी बात है, जो मसीह है उनके लिए सबसे जरूरी बात है कि सबसे जरूरी बात उसके लिए सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। जब भी समय मिले प्रार्थना में जाएं। और खुदा का कलाम कहता है कि हर समय हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। जो भी समय परमेश्वर हमें देता है, हमें प्रार्थना में रहना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, किस तरीके से, किस ढंग से प्रार्थना करनी है। हम चलेंगे मत्ती अध्याय में और उसके चैप्टर 6 में चलेंगे। हम 6 की 1 आयत में पढ़ने जा रहा हूँ। मत्ती 6 अध्याय उसकी 1 आयत में प्रभु का कलाम कहता है, सावधान रहो, बी अलर्ट, सावधान रहो। देखिए, जब हम सावधान का वचन सुनते हैं, सावधान का जब हम किसी के मुख से सुनते हैं कि सावधान हो जाए, किसी रोड पे जा रहे हैं तो सबसे पहले हम साइन देखते हैं। उस रोड पे सफर करने से पहले हम देखते हैं कि एक बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है सावधान। तो हम क्या करते हैं, अपनी जो गाड़ी की स्पीड है पहले उसको स्लो करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे अलर्ट का साइन दिया गया है, सावधान। तो प्रभु का कलाम कहता है 6:1 में, मत्ती 6:1 में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो। हालेलुया। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कहता है सबसे पहले आप सावधान हो जाइए। हमें क्या करना है, प्रभु के एक एक वचन के ऊपर मनन करना है, सुनना है, अपने मन में स्टोर करना है और सुनने के बाद उन वचनों के ऊपर चलना है। हालेलुया। मनुष्यों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम ना करें आप। कैसे कि लोग खुश हो जाएंगे, जी मैं धर्म का काम कोई करता हूं, मैं प्रार्थना कुछ ऐसी करूंगा जिससे लोग लोग कहेंगे वाह, कितनी अच्छी प्रार्थना करती है, कितना अच्छी प्रार्थना करता है भाई। लोगों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम ना करे। क्यों? नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आप दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? जो स्वर्गीय पिता है, जो आत्माओं का पिता है, जो स्वर्ग में है, उससे आप रत्ती भर भी फल नहीं पा सकते। यीशु मसीह कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ, और कितना? बहुतायत में फल लेकर आओ। प्रभु की तो इच्छा ये है कि एक जो विश्वासी है वो अपने जीवन में क्या कार्य करे? फल लेकर आए। कितना फल लेकर आए? अनलिमिटेड फल लेकर आए।
और यहाँ पे कलाम क्या कहता है, अगर आप लोगों को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम कर रहे हैं तो स्वर्गीय पिता से आप तो इच्छा छोड़ ही दीजिए, कुछ भी फल नहीं पाएंगे आप। इसी अध्याय में 6:5 में परमेश्वर क्या कहता है कि भाई आपको प्रार्थना कैसे करनी है, दुआएं कैसी करनी है, विनती कैसे करनी है, आरजी कैसे करनी है, कैसे हलीम होके परमेश्वर के सम्मुख आपने जाना। जब तू प्रार्थना करे, लोगों को नहीं बता रहा प्रभु, ये विश्वासियों के लिए वचन है। ये वो वचन है जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं। जब तू प्रार्थना करे, ये वचन मेरे लिए भी है, ये तमाम सुनने वालों के लिए है जो प्रभु के ऊपर विश्वास कर। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना करना, कपटियों के समान प्रार्थना ना करना। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना करना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर इकट्ठे होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। कपटी लोगों को क्या पसंद है? लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में, कलीसिया में प्रार्थना करेंगे, लोगों को दिखाने के लिए सड़कों में प्रार्थना करेंगे, भीड़ों में, मोड़ों के ऊपर प्रार्थना करेंगे। क्यों? कि लोग खुश हो जाएं। लोगों को खुश करने के लिए क्या करेंगे? गली मोहल्लों में, आराधनालयों में, कलीसिया में अपनी बड़ाई करने के लिए प्रार्थना करेंगे। पर प्रभु कहता है तू ऐसा मत करना, देख तू ऐसे प्रार्थना मत करना, ये तेरे लिए वचन है। तू कभी भी ऐसा मत करना। जब तू प्रार्थना करे तो इन लोगों की तरह, इन कपटियों के तरह प्रार्थना मत करना। मैं तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूं, तुझसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। जितना फल उन्होंने चाहिए उनको, वे पा चुके हैं। प्रभु उनके मुताबिक उनको फल दे चुका है। पर तू ऐसा मत करना। 6 में, पर जब तू प्रार्थना करे, मेरे बेटे मेरी बेटी, जब तू प्रार्थना करे तो तू कैसे प्रार्थना कर? जैसे मैं तुझे सिखाता हूं वैसे प्रार्थना करना। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। मेरे बच्चे, जब तू प्रार्थना करे, सबसे पहले कंडीशन है तेरे लिए, अप्लाई है ये कंडीशन है तेरे लिए। जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में, अपने घर में जाना सबसे पहले। और उसके बाद क्या करना है? आपने द्वार को बंद कर, अपने दरवाजे को लॉक कर ले, बंद कर ले, और अपने पिता से जो गुप्त में है, हालेलुया, अपने परमेश्वर से जो हिडन में है, गुप्त में है, उससे प्रार्थना कर। हालेलुया। जब तू प्रार्थना करे, सबसे पहले अपने घर में जा, अपना द्वार बंद कर, और अपने पिता से जो गुप्त में है, गुप्त में प्रार्थना कर। हालेलुया। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, हालेलुया, आप बंद कोठरी में हैं, आपको परमेश्वर देख रहा है। आप खुले में हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप कोई बुराई कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देख रहा है। आप कोई पाप कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर तो मुझे देख नहीं रहा, लेकिन ये वो परमेश्वर है जिसने आपको, पूरी कायनात को बनाया है। ये गुप्त का परमेश्वर सबको देखता है। ये वो तेरा परमेश्वर है जो गुप्त में देखता है, और तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। जब तू प्रभु के हिसाब से प्रार्थना करेगा तब तुझे वो प्रतिफल देगा, तब तू फल लाएगा। जब परमेश्वर के हिसाब से प्रार्थना करेगा। प्रार्थना करते समय तू अन्य जातियों के समान बक बक ना कर। अन्य जातियों की तरह क्या ना कर? बक बक। जो मन में आ रहा है, जो तेरे मुख में आ रहा है, तू वैसी प्रार्थना कर रहा है, ऐसी प्रार्थना ना कर।
क्योंकि ऐसी प्रार्थना करने अन्य जातियों का काम। तू ऐसे प्रार्थना ना कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाती है। वो क्या समझते हैं? ज्यादा बोलेंगे, ज्यादा लंबी प्रार्थना करेंगे, जो मुंह में आएगा बोलते रहेंगे, इससे हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। पर परमेश्वर तो ऐसी प्रार्थना को एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर तो ऐसी प्रार्थना सुनता ही नहीं है। हालेलुया। इसीलिए उनके समान मत बन, उन जैसा ना बन तू, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकताएं हैं। हालेलुया। प्रभु कहता है कि तेरे मुंह से बोलने से पहले मैं तेरी सारी जरूरतों को जानता हूँ। तेरी प्रार्थनाएं करने से पहले मैं तेरी सारी जरूरतों को जानता हूँ। तेरी क्या क्या जरूरतें हैं, यहोवा परमेश्वर कहता मैं सब जानता हूँ। तुझे किस चीज की जरूरत है, क्या तेरे पिता को नहीं पता? तेरे स्वर्गीय पिता को तेरी सारी जरूरतों को पता है। तू बोलता है परमेश्वर, प्रभु, क्या तुझे नहीं पता कि मुझे इस चीज की जरूरत है? प्रभु, मुझे फाइनेंस की प्रॉब्लम है। प्रभु, मुझे पैसे की जरूरत है। प्रभु, मुझे अच्छे घर की जरूरत है। स्वर्गीय पिता क्या क्या, तेरे मुख से बोलने से पहले मैं तेरी प्रार्थनाओं को जानता हूँ। तेरी जरूरतों को मैं जानता हूँ। तुझे किस चीज की जरूरत है, मैं सभी चीजों को जानता हूँ। हालेलुया। तू इस तरह से प्रार्थना कर, गुप्त में जाके प्रार्थना कर, तब तेरी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। और देखिए, हम देखते हैं दानियल कैसे प्रार्थना करता था। परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का दास, वो कैसे प्रार्थना करता था। दानियल अध्याय में जब देखते हैं हम, दानियल 1:1 में, बेबीलोन के राज में नबूकदनेस्सर ने क्या किया? यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई करके सभी को घेर। यहाँ पे हम एक देखते हैं, एक राजा है नबूकदनेस्सर, जो बेबीलोन का राजा है। उसने क्या किया? यरूशलेम के ऊपर चढ़ाई कर दी। और क्या किया? चढ़ाई करके पूरे यरूशलेम को गुलाम बना लिया। जब उसने गुलाम बना लिया तो फिर क्या किया? भवन के ऊपर, भवन के जितने बर्तन थे सभी को अपने अंडर कर लिया, सभी को अपने अधीन कर लिया। और जितने लोग थे सभी को गुलाम बना लिया। उन उन लोगों में से, अब देखिए, उन लोगों में से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी है। ये जो परमेश्वर के जन है और यहोवा परमेश्वर की उपासना करते हैं, और यहोवा को छोड़कर किसी को दंडवत नहीं करते, सिर्फ एक परमेश्वर की आराधना करते हैं। ये देखिए, ईमानदार हैं। ये चारों जो है परमेश्वर का डर रखते हैं, खौफ रखते हैं। ये भी गुलामी में चले जाते हैं। जब ये गुलामी में जाते हैं तो देखिए क्या होता है। 8 आयत में, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होऊंगा। जितने प्रधान थे, दानियल, शद्रक, मेशक को जब गुलाम बना लिया गया तो प्रधानों ने कहा कि अच्छा अच्छा खाना खाइए, अच्छी अच्छी वस्तुएं लीजिए, अच्छे अच्छे खाने के लिए आपके लिए वस्तुएं हैं। पर दानियल क्या कहता है कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, इससे खाकर मैं क्या हो जाऊंगा? अपवित्र। मैं सिंपल भोजन खाऊंगा और परमेश्वर की आराधना करूंगा और 24 घंटे में प्रार्थना में रहूंगा। दानियल क्या कर रहा है? प्रतिदिन प्रतिदिन प्रार्थना में रहता है, दुआओं में रहता है, 24 घंटे प्रार्थना में रहता है। और बाइबल हमें बताती है दानियल तीन तीन समय प्रार्थना में रहता है, सुबह, दोपहर को, रात को, शाम को। हर समय दानियल प्रार्थना में रहता है, 24 घंटे। जब भी समय मिलता है दानियल हमेशा प्रार्थना में रहता है। और जिसकी प्रार्थना करता है, जिसकी आराधना करता है, जिसकी स्तुति करता है, वो परमेश्वर, देखिए, यहोवा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं जानता है
और आपको किन चीजों की जरूरत है वो भी जानता है। ये तीनों चारों जो है अब गुलामी में जा रहे हैं। अब गुलामी में जाने से पहले परमेश्वर परमेश्वर जो दिलों हृदयों गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है, वो सब जानता है। इंसान क्या करता है? इंसान बाहरी रूप देखता है। हम कैसे जज करते हैं इंसान को? दो चार बातें करके, बाहरी रंग रूप देखकर हम देखते हैं कि इंसान कैसा है। लेकिन परमेश्वर कैसे जज करता है? परमेश्वर मनों को जांचता है। बाइबल कहती है परमेश्वर मनों को जांच लेता है, हृदयों को जांचता है, गुर्दों को जांच लेता है। ये चारों गुलामी में जा रहे हैं और परमेश्वर परमेश्वर क्या करता है? 17 आयत, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को जो सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी थी, दानियल को सब प्रकार के दर्शन और स्वपन अर्थ का ज्ञानी हो गया था। हालेलुया। अब दानियल भी गुलामी में जा रहा है, तो परमेश्वर इसके गुलामी में जाने से पहले इसको क्या दे रहा है? एक इसको वरदान दे रहा है। वो वरदान कौन सा है? दर्शन और स्वपन का, विजन का और ड्रीम्स का समझने का दानियल को परमेश्वर वरदान दे। देखिए, दानियल ने कुछ नहीं किया, कुछ स्पेशल नहीं किया परमेश्वर के लिए। सिंपल बंदा है, एक सिंपल साधारण सा इंसान है। और क्या कर रहा है? ये प्रार्थना कर रहा है, हर समय प्रार्थना कर रहा है। और दानियल ने खिड़की यरूशलेम की ओर रखी हुई थी, यरूशलेम की ओर देख के प्रार्थना करता है, यहोवा की आराधना करता है। जब भी समय मिलता था, हर समय जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हर समय प्रार्थना में रहता है। तो प्रभु इससे खुश होके इसे विजडम का नाम दे रहा है कि भाई कोई भी दर्शन जब ये देखेगा, उस दर्शन का अर्थ ये बता दे। अब दान इसके पास परमेश्वर ने दे दिया, पर फिर भी इसने घमंड नहीं किया। 2 अध्याय में जब हम देखते हैं, नबूकदनेस्सर राजे को एक ड्रीम्स आता है, एक स्वप्न आता है। स्वप्न देखता है, वो स्वप्न देख के डर जाता है और क्या करता है? अपने पूरे राज्य में ये खबर फैला देता है कि जो मुझे स्वप्न आया है, उस स्वप्न का अर्थ मुझे जो बताएगा, और मैं अपना स्वप्न भी उसे नहीं बताऊंगा। और ऐलान कर देता है, जितने मेरे राज्य में पंडित शास्त्री जितने भी हैं मेरे पास लाओ, और जो मुझे स्वप्न आया है उस स्वप्न का वो अर्थ बताओ। अब सभी को इकट्ठे करके नबूकदनेस्सर राजा के पास लाया जाता है, और उसका अर्थ कोई भी नहीं बता पाता। और सभी एक दूसरे को कहते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हमें पता ही नहीं है। ये खबर देखिए, ये खबर दानियल जो गुलामी में था उसके अंगरक्षकों के प्रधान के पास पहुंचती। तो प्रधान दानियल को बोलता है कि हमारे राजा को एक स्वप्न आया है और उसका अर्थ पूरे राज्य में कोई भी नहीं बता सकता। क्या तुम में से कोई हमारे राजा के स्वप्न का अर्थ बता सकता है? तो देखिए दानियल क्या कहता है, 2:17 आए थे। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हन्निय्याह, मिशाएल, अजराइया को ये हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए हम ये कहकर प्रार्थना करें। अब देखिए, जब दानियल के पास ये खबर पहुंची कि जो राजा को स्वप्न आया है उसका अर्थ कोई भी नहीं बता सकता, पर ये गिफ्ट, ये वरदान दानियल के पास था दर्शन का अर्थ बताने का। पर दानियल ने इस बात का घमंड नहीं किया कि भाई मेरे पास विजन है, मैं तो बता सकता हूँ। नहीं, उसने क्या किया? सबसे पहले शद्रक, मेशक, अबदनो के पास गया, विश्वासियों के पास गया। सबसे पहले विश्वासियों के पास गया, उनको इकट्ठा किया और क्या कहा उसने? इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया को मांगा।
और ये कहकर कहा कि हम प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले उसने क्या मैटर रखा कि हम इकट्ठे होके क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करें। विजन है, दान है उसके पास, पर फिर भी वो परमेश्वर के सम्मुख गया, परमेश्वर के पास गया और विश्वासियों के साथ उसने क्या किया, प्रार्थना की। और प्रार्थना करके क्या कहा, बेबीलोन और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगियों को नष्ट किया जाएगा। तब वह भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। हालेलुया। प्रभु के सामने, यहोवा परमेश्वर के सामने दानियल ने प्रार्थना करनी शुरू कर दी, विश्वासियों को इकट्ठा किया और प्रार्थना में जुड़ गया, फास्टिंग में चला गया, सिंपल खाने में चले गए और किसी डीजे पार्टी में नहीं जा रहा, किसी आराधनालय में नहीं जा रहा, सेपरेट होके एकांत में परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है और प्रार्थना में जुड़ गया है। जब वो प्रार्थना कर रहा था 19 आयत में परमेश्वर का आंसर, प्रार्थना का आंसर आ रहा है भाई। और देखिए, मैं उस परमेश्वर की आराधना करता हूँ जो प्रार्थनाएं सुनता है और उस प्रार्थना का जवाब भी देता है। वो परमेश्वर है। जब आप इस परमेश्वर के आगे आप प्रार्थना करते हैं तो ये परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है और इस प्रार्थना का जवाब भी देता है, क्योंकि ये जिंदा परमेश्वर है और हम जिंदा परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब मन सच्चाई से, रूह आत्मा से प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर का आत्मा भी ऐसे जनों को ढूंढता है, सर्च करता है, कौन आत्मा सच्चाई से आराधना करता है। परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, ऐसी आत्माओं को ढूंढता है जो दिल से, रूह से, जान से परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना करता। जब रूह से दानियल प्रार्थना कर रहा था तो रात को परमेश्वर का जवाब आता है। दानियल को रात के समय में दर्शन के जरिए जो दान था, वैसे ही विजन के जरिए दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर का ये कहकर धन्यवाद किया। जब स्वप्न का अर्थ दानियल को दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा स्पष्ट रूप में दिखाई दिया तो सबसे पहले प्रार्थना से उठकर दानियल ने सबसे पहले क्या किया, जैसे हमने पिछले वचन में पढ़ा था, विनती, निवेदन, धन्यवाद के साथ, थैंक्स गिविंग के साथ। जब इसके साथ दानियल ने क्या किया, स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद किया, शुक्रगुजारी की। हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, मैं शुक्रगुजार करता हूँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये भेदों का अर्थ स्वर्ग के परमेश्वर खुदावंद यहोवा परमेश्वर सिर्फ आप ही जानते हैं और भेदों का अर्थ भी आप ही बता सकते हैं। 20 आयत में, 20 आयत में परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है। अब देखिए, थैंक्स कर रहा है वो, धन्यवाद कर रहा है, प्रार्थना के बाद थैंक्स और धन्यवाद कर रहा है। प्रभु, आपका शुक्रगुजार करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपने इतना बड़ा भेद मेरे ऊपर खोल दिया है प्रभु, मैं शुक्रगुजार करता हूँ। क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। बुद्धि किसकी है? यहोवा परमेश्वर। समय और रीतियों को वही बदलता है। समयों को कौन चेंज करता है? ऋतुओं को, मौसम को कौन चेंज करता है? यहोवा परमेश्वर, आप ही चेंज करते हैं। राजाओं का अंत और उदय भी वही करता है। किसी राजा को वही चढ़ाता है और किसी राजा को अस्त भी वही करता है। तू ही बनाने वाला है, तू ही खाक में बनाने वाला परमेश्वर।
प्रभु मैं तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी ही आराधना करता हूँ। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। हालेलुया। ज्ञानवानों का ज्ञान नाश कर देता है यहोवा परमेश्वर। बुद्धिमान परमेश्वर बना देता है। बुद्धि देने वाला परमेश्वर तू है खुदा। वही गढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। बाइबल जब हम देखते हैं, आप पहली आयत से लेके उत्पत्ति की प्रकाशित वाक्य की लास्ट आयत तक देखिए। ऑल वर्सेस इज पैराबल्स। सारे वचन है जो दृष्टांत में है। इन दृष्टांतों का भेद किसको दिया गया है? मत्ती अध्याय 13 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वचनों का भेद है जो सभी को नहीं दिया गया, सिर्फ तुम्हें दिया गया है। वो तुम कौन हो जो परमेश्वर के द्वारा चुने हुए चेलों के ऊपर प्रकट किया है, और चेलों की समझ भी परमेश्वर ही खोलता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वे जानता है कि अंधेरे में क्या है, और उसके संग प्रकाश सदा बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। हालेलुया। ये थैंक्स कर रहा है और धन्यवाद करता है प्रभु। और देखिए प्रार्थना में कितना असर है। प्रार्थना हमारे जीवन में कितनी जरूरी है। एक विश्वासी के लिए क्या काम है? वो हमेशा हमेशा प्रार्थना में रहे, हमेशा लगातार प्रार्थना में रहे। और जब जब देखते हैं, हम चलेंगे पहला शमूएल, फर्स्ट शमूएल, उसका 1 अध्याय, फर्स्ट शमूएल में चलेंगे हम, और उसकी 1 अध्याय में चलेंगे। प्रार्थना का हमारे जीवन में कितना असर होता है। हम यहाँ पे देखते हैं, हन्ना नाम की एक स्त्री, हन्ना नाम की स्त्री है जो परमेश्वर यहोवा का डर, खौफ, आराधना और हमेशा प्रार्थना में रहने वाली औरत है। ये हम देखते हैं कि इसके जीवन में प्रार्थना का क्या असर हुआ। हन्ना की जीवन में प्रार्थना कितनी इंपॉर्टेंस थी, कितनी जरूरी थी प्रार्थना इसके जीवन। इस प्रार्थना को समझने के लिए हमें उसके पूरे जीवन के बारे में जानना पड़ेगा कि उसका जीवन कैसा कठिनाइयों में चल रहा था। कठिनाइयों में जाने के बाद भी हन्ना निरंतर प्रार्थना में रही, हमेशा यहोवा की आराधना करती रही। और देखिए इस औरत के ऊपर, हन्ना के ऊपर जीवन में बहुत सी कठिनाई, बहुत सी मुश्किलें आई, बहुत से अत्याचार हुए, फिर भी लगातार प्रार्थना में रही। हम आएंगे शमूएल पहला अध्याय और 1 वचन से हम देखेंगे। एप्रैम के पहाड़ी देश के रामातोमोपीस नगर का एक निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वे अप्रेमी था और सूप के पुत्र तोही का परपोता, एलेहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसके 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरी का नाम पनिन्ना था। हालेलुया। अब यहाँ पे देखते हैं हन्ना, और यहाँ पे उसके पति का जिक्र हो रहा है जिसका नाम है इल्काना, और उसकी 2 पत्नियां हैं। और देखिए, वो प्रति वर्ष उसका पति दोनों पत्नियों को लेकर यहोवा को दंडवत करने के लिए प्रति वर्ष यहोवा के पास जाता था। और हम देखते हैं, जो उसकी पहली पत्नी थी एल्काना की, उसके 2 बेटे थे। पर 5 आयत में, परंतु हन्ना को वो
दूना दान दिया करता था, क्योंकि वे हन्ना से प्रीति रखता। उसका पति हन्ना से बड़ी प्रीति रखता था, तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी। हालेलुया। हमने वचन पढ़ा, तो भी यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद रखा था, बांझ रखा था। देखिए, कोख बंद करना परमेश्वर के हाथ में है, और कोख को खोलना भी परमेश्वर के हाथ में। ये परमेश्वर की मर्जी, ये परमेश्वर के हाथों में है। कोई इंसान किसी की कोख नहीं खोल सकता और ना किसी की कोख बंद कर सकता। आप दुनिया के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को भी ले आइए, वो भी किसी जन की कोख नहीं खोल सकता। ये सारा काम परमेश्वर का। यहोवा ने हन्ना की कोख को बंद रखा था, परंतु उसकी सोत इस कारण यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। देखिए, अब हन्ना के ऊपर बहुत सारे दोष लगाते थे, तू बांझ है, तेरी कोख बंद है, चिल्लाते थे, उसे चिढ़ाया करते थे। पर वो क्या करती थी हन्ना? हन्ना परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना, हर साल परमेश्वर यहोवा को दंडवत करने के लिए जाती थी, हर समय प्रार्थना में रहती थी। अब देखेंगे 9 आयत में हन्ना, देखिए कैसे निरंतर प्रार्थना में रहती है। एक एक बहन के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, इतने एलिगेशन लग रहे हैं, जीवन बुराई में चल रहा है, लोग बुरी बुरी बातें कर रहे हैं उनसे। पर देखिए, एक विश्वासी का फर्ज क्या बनता है? क्या लोगों की बातों को सुन के अपने मन में दुखी रहे, चिड़चिड़ाता रहे, बंद कमरे में जाके परेशान हो जाए? क्या एक विश्वासी ऐसा होता है? हम देखेंगे अब हन्ना क्या करती है 9 आयत में। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, अपना काम कंप्लीट किया, अपने पति के साथ खाया पिया। उठने के बाद हन्ना क्या करती है? यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पे बैठा हुआ था। अब हन्ना उठती है और यहोवा के मंदिर की चौखट के पास एक साइड पे हम यहाँ पे देखते हैं एली याजक, एक पास्टर जो क्या है कुर्सी पे बैठा हुआ, जो देख रेख करता है कलीसिया की, चर्च की, आराधनालय की देख रेख कर रहा है वो। तो क्या करती है हन्ना? वे मन में व्याकुल हो जाती है। सबसे पहले मन में क्या हुआ? व्याकुल हो गई हन्ना। बिल्कुल व्याकुल, व्याकुल शब्द समझते हैं आप? बिल्कुल पूरा मन परमेश्वर की तरफ लगा दिया। व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और विलख विलख कर रोने लगी। हालेलुया। मन में व्याकुल हो चुकी है, अब उसे पता नहीं है कुछ भी। व्याकुल का मतलब बिल्कुल उसे कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रही है, और यहोवा से प्रार्थना कर रही है। देखिए, ये किसी पास्टर से प्रार्थना नहीं करवा रही है, किसी मूर्ति के आगे प्रार्थना नहीं कर रही है, ये जिंदा यहोवा के सम्मुख प्रार्थना कर रही है। और कैसे कैसे देखिए इसकी प्रार्थना को, आप देखिए, विलख विलख कर रो रो के प्रार्थना कर रही है, बुरी तरह से चिल्लाकर, रो रो के, आंसू बहा बहा के प्रार्थना कर रही है। व्याकुल मन, एकांत में टूटा हुआ मन लेकर यहोवा से प्रार्थना कर रही है, विलख विलख कर रो रो के प्रार्थना कर रही है। और उसने ये मन्नत मांगी। देखिए, अब मन्नत मांग रही है, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, अपनी दासी को भूल ना जा और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए
यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर शुरा फिरने ना पाएगा। आमीन, हालेलुया। अब देखिए ये प्रार्थना कर रही है, रो रो के, बिलख बिलख कर, व्याकुल होकर प्रार्थना कर रही है। अगर यही प्रार्थना आज कोई भाई बहन करे तो वो कैसे प्रार्थना करेगा कि प्रभु मुझे पैसे की बड़ी जरूरत है, प्रभु मुझे पैसे का अरेंज कर दे कहीं से, प्रभु मुझे घर की जरूरत है, अच्छे घर की अरेंज कर दे, मुझे मुझे जरूरत है प्रभु, गर्मी बहुत है, मुझे एसी का इंतजाम कर दे प्रभु, क्या मैं गर्मी में आया जाया करूंगा, मुझे तो बड़ी परेशानी होती है। डिमांड देखिए ऐसी होगी कुछ अनविश्वासी की। जिसे विश्वास की घटी होगी ना, वो क्या करेगा, दुनियावी चीजें मांगेगा। मुझे बाइक दे दे परमेश्वर, मुझे कोई अच्छी वस्तु दे दे प्रभु। वो क्या, जिसके विश्वास में कमी है वो क्या करेगा, वो दुनियावी चीजें मांगेगा। जिसका विश्वास हाई लेवल का है वो परमेश्वर से आत्मिक चीजें मांगेगा। ये बहन रो रो के प्रार्थना कर रही है, बिलख बिलख कर प्रार्थना कर रही है और मांग रही है, परमेश्वर मुझे भूल ना जा, परमेश्वर सचमुच मुझ पे दृष्टि कर, परमेश्वर अपनी दृष्टि मुझसे ना हटा खुदा, अपनी निगहबानी में मुझ पे रख परमेश्वर, अपनी आंखें मेरी ओर लगा के रख। मैं रो रही हूँ परमेश्वर, चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, मुझे मुझे एक बेटे की जरूरत है खुदा। जब आप रो रो के प्रार्थना करते हैं और प्रभु का वचन कहता है टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम चीज होती है। अगर आप परमेश्वर को कोई चीज दे सकते हैं तो आप सबसे उत्तम चीज टूटा हुआ मन लेकर परमेश्वर के पास जाएं। परमेश्वर को वही भाता है। हालेलुया। ये रो रही है, चीख रही है और अपने एक बेटे के लिए तमन्ना कर रही है कि परमेश्वर मेरी सुधि ले और मुझे एक बेटा दे, और ये बेटा जब तू देगा तो ये बेटा भी मैं तुझे अर्पण कर दूंगी। अपने लिए नहीं मांग रही कि प्रभु मुझे बेटा दे देना, वो जब वो बड़ा हो जाएगा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी सेवा करेगा, मेरे हाथ पांव दबाएगा, मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाएगा। नहीं परमेश्वर, तो बेटा जो मैं मांग रही हूँ ये आपकी सेवा करेगा, आपकी सेवा करेगा, आपको समर्पित करूंगी मैं। देखिए प्रार्थना में क्या मांगना चाहिए, हम इस बहन से सीखें। जब वे यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुख की ओर ताक रहा था। प्रार्थना हो रही है और एली याजक पास्टर उसके मुंह की ओर ताक रहा है कि भाई ये बहन सिस्टर कैसे प्रार्थना कर रही है। अन्ना मन ही मन में कह रही थी, उसके होंठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द सुनाई ना पड़ता। प्रार्थना देखिए ऐसी होनी चाहिए कि दिल से प्रार्थना निकले, वो रूह से, जिस्म जान से प्रार्थना निकले। ये बहन इतनी रो रो के प्रार्थना करिए, इसके लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहे। और आजकल लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, किसी को टारगेट रख के प्रार्थना करते हैं, साफ समझ में आता है। और प्रभु का वचन, यीशु मसीह का वचन हमें क्या सिखाता है कि कपटियों की तरह प्रार्थना मत कर, अधर्मियों की तरह प्रार्थना ना कर, लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना ना कर, क्योंकि वो अपना प्रतिफल पा चुके हैं। तू कैसे प्रार्थना कर, देख जब तू प्रार्थना करे तो एकांत में प्रार्थना कर। ये प्रार्थना कर रही है, रो रही है, बिलख रही है, और पास्टर एली इसकी तरफ देख रहा है और देख रहा है ये तो बोल रही है, होंठ हिल रहे हैं, शब्द कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रार्थना इसने क्या किया है मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन देखिए इसकी प्रार्थना परमेश्वर को समझ आ रही। किसी इंसान को समझ आए ना जा आए, जो मन से और रूह से प्रार्थना की जाती है उसकी समझ सिर्फ परमेश्वर को आएगी। हालेलुया। 14 आयत में तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी। देखो उसे ऐसे कंडीशन मालूम हो रही थी, इसने जैसे कोई नशा किया हुआ। तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार सबसे पहले।
एली को तो ये लग रहा था कि हन्ना ने बहुत नशा किया हुआ है, तो कब तक नशे में रहेगी, सबसे पहले बहन अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ। हालेलुया। पास्टर जी, मैं जो प्रार्थना कर रही हूँ टूटे हुए मन से कर रही हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ मेरे जीवन में। आप देखिए, सिर्फ मैं और मेरा परमेश्वर जानता है कि मैं कितनी दुखी, कितनी परेशान हूँ। देख, मैं तो बहुत दुखी हूँ। मैंने तो दाख मधु नहीं पिया और ना मदिरा। मैंने तो मन की बात खोलकर यहोवा से कह दी है। हालेलुया। मैंने कोई दाख मधु, कोई मदिरा नहीं पिया। मैंने तो अपने मन का दुखड़ा, अपना हाल अपने परमेश्वर के सम्मुख कर दिया है। अपने परमेश्वर को अपना सारा दुख बता दिया है। अपनी दासी को ओछी स्त्री मत समझ। अपनी दासी को बुरी औरत मत समझ। तो जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होना और चढ़ाई होने के कारण कहा है। दुखी, परेशान, शोकित होके ये मैं सभी बातें कह रही हूँ। देखिए, फिर एली ने कहा, कुशल से चली जा, कुशल से चंगी होके चली जा। इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने उससे कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वे स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मन फिर कभी उदास नहीं हुआ। हालेलुया। देखिए, उसने मन से प्रार्थना की। जब हन्ना ने मन से प्रार्थना की, हमने अभी 18 आयत पढ़ी, 18 वचन पढ़ा, उसके बाद उसका मन फिर कभी भी उदास नहीं हुआ। देखिए, जो प्रार्थना में उसने मांगा, उसने विश्वास कर लिया कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वो मुझे मिल गया है, पर इसे अभी मिला नहीं है। आप इसके ऊपर सोच विचार करें। जो उसने प्रार्थना में मांगा है और उसने दोबारा उसका मुख कभी भी उदास नहीं हुआ। उसे अभी चीज मिली नहीं है जो उसने प्रार्थना में मांगा। उसने बेटे की तमन्ना की, बेटा भी उसकी जिंदगी में आया नहीं, पर वो उसे विश्वास था जो मैंने मांगा वो मुझे मिल चुका है। कभी भी उदास नहीं हुआ। हम भी जब परमेश्वर से ईमान से मांगते हैं ना, रो रो के बिलख बिलख के मांगते हैं, तो फिर अब हमारा मन उदास नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमें वो चीज दे चुका होता है। समय समय परमेश्वर के हाथ में होता है। और जब हम सारा वचन पढ़ते हैं तो यहोवा ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना और उसके एक बेटा हुआ और उसका नाम था शमूएल। हालेलुया। और हम बात कर रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना में कितनी ताकत, कितनी सामर्थ होती है, कितनी ताकत, कितनी सामर्थ होती है। और एक विश्वासी को हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए, निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए, विनती में रहना चाहिए, शुक्रगुजारी में रहना चाहिए, धन्यवाद के साथ रहना चाहिए। और हम पूरी बाइबल में देखते हैं, प्रभु का वचन कहता कि हर समय प्रार्थना में रहो, हर समय धन्यवाद के साथ रहो, हर समय। और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें प्रार्थना करना सिखाया है कि जब भी घड़ी मिले प्रार्थना करते रहो। जब हम न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, जब भी कोई भी वचन पढ़िए, रात को यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, पूरी पूरी रात प्रार्थना कर रहा है। निकोदेमुस रात को उसके पास आ रहा, तब भी परमेश्वर प्रार्थना में है। सुबह उठ के जब वो आराधनालय में आ रहा है तब भी प्रार्थना में है। कहीं जा रहा है तब भी प्रार्थना में है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें एग्जाम्पल की तरह बताया है कि खुद खुद प्रार्थना में रहा। वो 24 घंटे हर समय प्रार्थना में, प्रचार में, वचन में। हमें भी निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए, हमेशा प्रार्थना में रहना चाहिए। और प्रभु का शुक्रगुजार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमें भी हर समय प्रार्थना में रखे। हर समय हम थैंक्स करें, प्रभु का शुक्रगुजारी करें।
और देखिए योना नबी को देखते हैं हम देखते हैं जब परमेश्वर की आज्ञा का हम पालन करते हैं तो कितनी आशीषें और बरकतें हमें मिलती हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते तो देखिए फिर उसकी उसकी आशीषें तो हमें नहीं मिलती, परमेश्वर का क्रोध जरूर हमें मिलता है। योना नबी जब हम देखते हैं ओल्ड टेस्टामेंट में, परमेश्वर के कहने के मुताबिक निनीनवे को छोड़कर तरशीब की तरफ जाता है। जब सारी घटना हम पढ़ते हैं तो जब बेल मत्स्य उसको अपने अंदर ले लेती है तो वो 3 दिन 3 रातें लगातार प्रार्थना में रहा, लगातार। देखिए जब मुश्किल आ जाएगी तब प्रार्थना करेंगे हम, जब बीमारी हमें पकड़ लेगी तब प्रार्थना करेंगे, जब मौत सर के ऊपर आ जाएगी तब प्रार्थना करेंगे जब बोझ हम पे पड़ जाएगा तब प्रार्थना करेंगे हम वेट कर रहे हैं कब हम मुश्किल में फंस जाएं तब प्रार्थना करेंगे हमें समय से पहले प्रार्थना करनी चाहिए। यूहन्ना नबी ने परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना की, और जब हम पढ़ते हैं जब सारा सारा जब अध्याय पढ़ते हैं तो देखिए फिर वो पेट में, मछली के पेट में प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझ पे दया कर। अधलोक दिखाई देता वहां पर उसे, नरक दिखाई देता है कि प्रभु तू ही मुझे बचा सकता है, प्रभु मुझ पे दया कर। प्रार्थना करता है लगातार। वो देखिए मर्जी परमेश्वर की पूरी होती है। जिसे परमेश्वर ने चुना होता है ना, उसके जीवन में उसकी मर्जी कभी भी पूरी नहीं होगी। जिसको परमेश्वर ने चुन लिया है उसके जीवन में प्रभु की ही मर्जी पूरी होगी। कहीं भी भाग जाए वो, परमेश्वर पकड़ के फिर वो वापिस उसे वहां पे लेकर कलाम में लेकर आएगा। जिस भाई को, जिस बहन को परमेश्वर ने अपने कलाम के लिए चुन लिया है, वो अगर उससे भागेगा, देखिए मुश्किल हालात आएंगे, परमेश्वर कान से पकड़कर फिर अपने कलाम में ले आएगा। सेवा करनी पड़ेगी। जिसको भी परमेश्वर ने चुना हुआ पकड़ के परमेश्वर अपने कलाम में वापस लेकर आए। और देखिए हमें इस कलाम से सीखना चाहिए कि हमें निरंतर प्रार्थना में रहना चाहिए और परमेश्वर को अपनी जीवन में उसकी मर्जी को पूरा होना चाहिए। हम प्रार्थना में मांगे, खुदा हमारे जीवन में प्रभु जी हमारी मर्जी नहीं, खुदावंद यीशु मसीह आपकी मर्जी पूरी हो। खुदावंद मैं अपने मुताबिक अपना जीवन ना व्यतीत करूं, प्रभु जो तेरी इच्छा है वो मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की मर्जी के हिसाब से चलें। और वचन तो बहुत है। आइए हम अगला समय भाई योशुआ के साथ रहेंगे। प्रभु आप सभी को बहुत सारी बरकतें दें, आशीषें दें। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको आशीष दे सुंदर कलाम के लिए। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा ही प्रार्थना में बने रहना चाहिए, क्योंकि सोते समय भी हमें प्रार्थना में रहना चाहिए कि खुदावन जब तू आए तो मुझे उठा लेना प्रभु, कहीं मैं सोता ही न रह जाऊं। ये दुआ करके हमें सोनी चाहिए कि प्रभु हमें हमेशा ही आत्मा में जागते रह कि हम प्रार्थना करते रहे। खुदावन हमें जगाते रहे खुदावन कि हम आत्मा में भी तुझसे दुआ करते रहें और आपसे आशीषें और बरकतें मांगते रहें और पाते रहें। प्रभु की महिमा हो। सुंदर कलाम के लिए भाई आपको प्रभु आशीष और बरकत दे। अब हम भाई विशाल के साथ आखिरी प्रार्थना में जाएंगे। भाई विशाल, गॉड ब्लेस यू, आप प्रार्थना कर सकते हैं। जी भाई। अ, जी भाई, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सबसे। हमारे पास कुछ समय भी हो रहा है, तो सिस्टर जेकब अगर गीत गाना चाहते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो एक गीत गा लें, उसके बाद हम आखिरी प्रे करके इसे क्लोज करेंगे। सिस्टर जेकब। सिस्टर वेरोनिका सुन पा रहे हैं? सिस्टर रोनिका।
हेलो हेलो जैमसी की सिस्टर। जी सिस्टर, आपकी आवाज आ रही है। ब्रदर, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है। मैंने ना ये एक्सटर्नल स्पीकर लगाया हुआ, मैं उसको ऑफ कर देती हूँ। ओके, थैंक यू ब्रदर, हाँ, गॉड ब्लेस यू। मैंने एक खुदावन के लिए एक गाना रखा है रेडी। एक मिनट में उसके लिरिक्स निकाल देती हूँ। उसका है यीशु नाम, हिंदी में है। जी, और मैं ये खुदावन की स्तुति में आई विल लाइक टू सिंग दिस सॉन्ग। सो यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम जिंदगी का जाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम मुक्ति दिलाए, अंधेरों में राह दिखलाए, खोल दे वो बंद आसमां, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। क्रूस पर लहू जो बहा है, दागर दिल का धुला है, तेरे मेरे पापों का वो दाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। झुक जाओ कदमों में सारे, फतह की मारो सब नारे, दुनिया को दे वो, दुनिया को दे दो ये पैगाम, जिंदगी का दे वो ही आराम। यीशु नाम, 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 यीशु नाम। Thank you so much, brothers and sisters. God bless you all. गॉड ब्लेस यू सिस्टर, सुंदर गीत के लिए। सचमुच हमें ये पैगाम, यीशु नाम का जो पैगाम है, सभी सभी कानों तक पहुंचाना है। हमें प्रभु हिम्मत और बल दे कि कोई ऐसा कान ना रह पाए जिसके कान में ये गूंज ना जाए कि यीशु नाम का जो पैगाम ना पहुंच पाए। हमें प्रभु आशीष दे, बरकत दे। भाई विशाल के साथ हम दुआ में जाएंगे। जी, तो आइए हम सब अपने आप को जिंदा खुदाबंद के आगे, खुदाबंद के अनुग्रह में अपने आप को बनाते हैं और परमेश्वर से मांगते हैं कि खुदा ने आज जो हमारे लिए जो बीजों को हमें आज दिया है, जो जीवन के वचनों को हमें आज दिया है, हम उन समझने के लिए परमेश्वर से मांगे, क्योंकि इंसान उस बीज के रूप तैयार होता है। मेरे खुदा, आप उससे पहले प्रभु उस पर चित्त लगाते हैं प्रभु, इससे पहले कि वो अपने माँ के गर्भ में जाए प्रभु, आप प्रभु जी उस पर अपनी नजर करते हैं प्रभु। इससे पहले कि वो इस धरती पर इस दुनिया की रोशनी को देखने पाए प्रभु जी,
आप खुदाबंद खुदा उसके संग रहते हैं, इससे पहले कि वो अपने जीवन में प्रभु जी वो ऐसा कोई भी कार्य करे, प्रभु आपकी नजर उस पर निरंतर लगातार बनी रहती है, क्योंकि प्रभु वचन कहता है कि वो आंखें जो प्रभु जी वो स्वर्ग में खुदाबंद आपके दूतों में है प्रभु जी, वो हर समय इंसानों को जांचती और परखती, उनकी हर गतिविधियों पर नजर रखती है प्रभु जी। जब प्रभु जी हम पर परमेश्वर आपकी इतनी बड़ी दया हुई है खुदाबंद कि आपने प्रभु जी अपना दया वाला दाहिना हाथ, वो छिदा हुआ हाथ, यीशु का सामर्थी लहू प्रभु जो किसी बर्रे किसी मेमने का नहीं है, वो सामर्थी खुदाबंद के प्रिय पुत्र इकलौते बेटे का है, उस खुदाबंद के सामर्थी लहू में आज मैं प्रभु जी आपके करीब आता हूं प्रभु जी। अपने भाई बहनों को प्रभु जो इस जगह पर है परमेश्वर आपके समीप ले आता हूं प्रभु, आप हम पर अपना अनुग्रह करें परमेश्वर। प्रभु हमें आपकी जरूरत है प्रभु जी, और सदैव प्रभु आप प्रभु जी हमसे अपने कार्यों को ले प्रभु जी। आप हमारे जीवनों में प्रभु जी अपने वचन को उड़ेले मेरे खुदा, हम प्रभु जी आपके वचन से भरे रहें प्रभु जी। जब कभी भी प्रभु जी आप प्रभु जी हमें पुकारें तो हम प्रभु शमूएल की तरह कह सके, जैसे खुदाबंद तूने शमूएल से बात की प्रभु, और शमूएल को बताया गया कि तू कहना कि हाँ मैं हाजिर हूं। और ऐसे ही पिता परमेश्वर प्रभु आपके सेवकों आपके नबियों ने भी प्रभु कहा, आपके चुने हुओं ने कहा कि मैं हाजिर हूं मेरे खुदाबंद। प्रभु होने दे कि ये आशीषों का बादल प्रभु जी इन ईमानदारों को प्रभु घेर ले मेरे खुदाबंद, और होने दे मेरे खुदाबंद खुदा रात के अंधेरे घोर अंधेरे में भी प्यारे प्रभु जी आपका प्रभु जी वो आग का खंभा प्रभु जी इनके ऊपर मंडराए प्रभु, इन्हें वो रोशनी दे ताकि प्रभु जी ये रात में भी किसी भय से ना डरे और दिन के उड़ने वाले तीरों से भी बचे प्रभु जी। प्रभु इनके जीवनों को तू ब्लेस कर मेरे खुदाबंद, अपनी महिमा से भर मेरे खुदाबंद। होने दे प्रभु जी कि इनके जीवनों में पिता परमेश्वर आपकी सामर्थी प्रभु वचन की प्रभु जी जय जयकार हो प्रभु जी। आपके वचन की प्रभु जी आज्ञाकारी इनके जीवनों में पाई जाए प्रभु जी। प्रभु इन सभी भाई बहनों को जिन्हें पिता परमेश्वर आपने आज प्रभु अपना सामर्थी वचन दिया है मेरे खुदा, होने दे प्रभु जी की ये वचन इनके भीतर बैठे और प्रभु जी बहुत सारा फल लेकर आए। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर ब्रदर इमैनुअल के लिए खुदावन, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर है प्रभु, आप हमें प्रभु जी ब्लेस करने वाले खुदा है प्रभु। इससे पहले कि कोई इंसान प्यारे प्रभु कहे कि प्रभु देख मैं तो पीड़ा में हूँ, प्रभु तू उसकी पीड़ा जानता है प्रभु। प्रभु इससे पहले कि इंसान अपने मुख से कुछ कहे तो उससे पहले उसका दुख जानता है प्रभु, क्योंकि प्यारे प्रभु जी तू चाहता है मेरे खुदा कि वो तुझसे मांगे, क्योंकि प्रभु तेरे दाहिने हाथ में दया धर्म और शांति और सत्य और अनुग्रह प्रभु हमेशा बना रहता है मेरे खुदा। प्रभु इस खुदाबंद तेरे दास के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, खुदाबंद जो तूने प्रभु जी हम भाइयों को हम सब प्रभु जी तुझे प्यार करने वालों को जो अधिकार दिया है प्रभु, मैं प्रभु उस बुजुर्ग भाई के लिए प्रभु जी आपसे सलामती मांगता हूँ खुदाबंद। प्रभु आपका अलखिम शालोम प्रभु उनके ऊपर आ ठहरे मेरे खुदाबंद। होने दे प्रभु जी कि आपका वचन प्रभु जी आज उन्हें ब्लेस करे मेरे खुदा, उनकी वीकनेस को पिता परमेश्वर आप दूर कर दें प्रभु जी। और होने दे मेरे खुदाबंद खुदा कल प्रभु जी खुदाबंद खुदा जब सुबह की वो रोशनी में प्रभु जी चले तो मेरे खुदाबंद खुदा उनके जीवन में प्रभु जी आपका अनुग्रह हो मेरे खुदा। प्यारे प्रभु जी आज की प्रभु जी जीवन के दिन में प्रभु जी वो आपकी महिमा करने पाए प्रभु जी। प्रभु आपका फरिश्ता उन्हें छू ले मेरे खुदाबंद प्रभु यीशु। मैं आपके हाथों में भाई को देता हूँ प्रभु जी, आप अनुग्रह करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मैं तमाम भाइयों को बहनों को जो इस प्लेटफॉर्म पे इस समय है, जो बाद में भी प्रभु जी इस प्रभु जी वचन को इस प्रभु जी ट्रांसमिशन में जो हमने प्रभु आज यहाँ पर कार्य किया, इस कार्य को देखे सुने, उन सबों पर आपका अनुग्रह मांगता हूँ प्रभु जी। होने दे प्रभु जी हम में से हर एक जन प्रभु जी अपने अपने फलों को संभाले रहे प्रभु जी, अपने फलों को मेंटेन रखे। और प्रभु जी जब आप आए तो मेरे खुदा हम आपके चरणों में अपने
ये फलों को रखने पाए प्रभु, हमें ये शुभ अवसर मिले प्रभु जी। प्रभु जी अपने अनुग्रह में बढ़ाएं इन प्रभु दिनों में प्रभु जी। हालात प्रभु जी बहुत डिस्टर्ब करने वाले चल रहे हैं प्रभु जी। प्रभु लोगों को ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी शिक्षाएं दी जा रही हैं मेरे खुदाबंद, जिनमें कोई भी सत्य नहीं है प्रभु। कोई भी मिलावटी वचन प्रभु जी तेरी इस कलीसिया तक ना पहुंचने पाए प्रभु जी। होने दे खुदाबंद कि तूने जो प्रभु जी अपने बच्चों को अपनी प्रभु जी ड्यूटी दी है मेरे खुदा, वो उसमें ईमानदार बने मेरे खुदा। प्यारे परमेश्वर, आपके दूतों का प्रभु जी बाड़ा मांगता हूँ एक एक जन के लिए। और प्रभु जी इंग्लैंड में जो मेरे प्यारे भाई बहन हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह उन पर हो। और प्रभु आप अपने दाहिने हाथ से उन्हें संभाले, उन्हें कवर करें प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी कलीसिया के सारे भाई बहनों के लिए और बच्चों के लिए खास करके प्रभु इस मौसम में, क्योंकि प्रभु पंजाब में बहुत प्रभु जी गर्मी पड़ रही है प्रभु, आप बच्चों पर अपना अनुग्रह करें प्रभु। हर एक बच्चा स्वस्थ रहे प्रभु जी, और बुजुर्गों पर भी आपका अनुग्रह प्रभु जी। आज आपने हमें ऐसा इकट्ठा किया कि आज प्रभु हमें आनंद मिला, आपकी शांति मिली, आपके वचनों को सुनने का प्रभु जी ये सौभाग्य हमें प्रभु जी हासिल हुआ। होने दे प्रभु कि ये ऐसे दान वरदान प्रभु और ऐसी आशीषें हमारे जीवनों में सदैव बनी रहें। और प्रभु जी एक दिन ऐसे ही खुदा हम दिल की गहराइयों से तुझे धन्यवाद करते हुए प्रभु जी तेरे प्रभु जी पास प्रभु बादलों में पहुंच जाएं और प्रभु तेरा इस्तकबाल करें, तुझे धन्यवाद करें, तेरे कदमों को चूम ले। और प्रभु जी हमारे आंसुओं को तू पहुंच डाले प्रभु, अपना अनुग्रह कर हमें बढ़ा, हमें ईमान की प्रभु जी वो पाक रूह का मसा दे प्रभु जी, ताकि खुदाबंद हम और भी प्रभु जी मजबूत हो सके प्रभु, और भी तेरे नजदीक आ सके खुदाबंद। खुदा अनुग्रह करें प्रभु। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी जो मैंने मांगा है आपने मुझे दे दिया है प्रभु। आपका धन्यवाद कि आप प्रभु जी मेरी आवाज को सुनते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद हो, हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। आमीन 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 ब्रदर, गॉड आमीन। ब्लेस। प्रभु गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे गॉड ब्लेस यू। सुरागी प्रार्थना के लिए। सिस्टर जैमसी की गॉड ब्लेस यू। जय मसीह ब्रदर, जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह जी, जय मसीह जी। जय ब्रदर राकेश जी, मसीह। जय सिस्टर मसीह जी, वेरोनिका प्रेज द जैमसी लॉर्ड। की। राम पाजी, जय मसीह की ब्रदर जोशुआ। की सबको जैम की। सिस्टर प्रेज द लॉर्ड। जेकब, बल्कि जैमसी की। जैमसी के ब्रदर, जय मसीह जय की मसीह ब्रदर। राकेश पाजी, राकेश पाजी जय मसीह। जैमसी की जय सिस्टर जी। मसीह दी साਰਿਆਂ ਨੂੰ। जय जैमसी मसीह जय आज यहाँ मसीह पे जी, जैमसी एंड आरब जय जय मसीह जी, मसीह वेरोनिका। प्रेज द जय लॉर्ड। जय मसीह की। हाय इंजू, जय मसीह की। हाउ आर यू? ठीक हूँ। ओ आप ठीक हो? थैंक यू। मुझे मैंने आपका देखा वो कार्ड, मैं पापा को भेजूंगी, पर मैंने बहुत रात को देखा था तो इसलिए मैंने रिप्लाई नहीं किया आपको। ओ या मैंने यहाँ पे लाइक 2 बज रहा था रात का। जय हेलो, मसीह की जय जय मसीह, मसीह जय की। जैमसी जय मसीह ब्रदर की। जैमसी की। प्रभु आपको बरकत दे, साਰਿਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखे। गॉड आप ब्लेस। ठीक है? आमीन आमीन। जय मसीह की। गॉड